हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना? सर। आवाज आ रही? Yes, sir. सर तो next part that is known as method of successive decay. Method of successive decay. So suppose you have a nucleus is decaying to B, okay, and B is further decaying to C. A से B decay में जो decay constant है lambda 1 है और B से C में lambda 2 है. And initially at T equals to 0, you have only parent nucleus A exist, but daughter and both daughter is 0. At time T equals to T, this A nucleus becomes N on T, P becomes N2T, C becomes N3T. So initially you have a this is successive decay, means B is not constant, so A is decaying to B. B's daughter is not stable, that is decaying to C. Initially you have a nucleus is there, parent nucleus A is there, okay, with amount is N naught. After time T, A number of A nucleus become N on, B nucleus become N2, and C nucleus becomes N3T. So this is important actually, that this N on T, this is actually, if you calculate for any arbitrary time, this will be N naught to the power minus lambda T. N2T, इसका जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. N2T, number of B nucleus after time T, so that will be N naught lambda on this lambda 1 divided by lambda 2 minus lambda 1, then e the power minus lambda 1 T minus e the power minus lambda 2 T. And C nucleus N3T, this will be how much? N naught, then 1 minus lambda 2 by lambda 1 minus lambda 2 e the power minus lambda 1 T, then lambda 1, I think this will be lambda 2 minus lambda 1. Please check it. नीचे वाला चेक कीजिएगा कि lambda 2 minus lambda 1 है, lambda, I think lambda 2 minus lambda 1. Then lambda 1 divided by lambda 2 minus lambda 1 e the power minus lambda 2 T. So this intermediate now intermediate nucleus B. So number of undecayed nucleus B N to T, this is N naught lambda 1 divided by lambda 2 minus lambda 1 e the power minus lambda 1 T minus e the power lambda minus lambda 2 T. This is a function of time. ठीक है ना? किस टाइम पर N to T मैक्सिमम होंगे? कोई बता सकता है? Can you tell the formula? So this is a T prime at which N to T is maximum. How will calculate? So this is 1 by lambda 1 minus lambda 2 natural log of lambda 1 by lambda 2. ठीक है? जैसे रिसेंटली 21 को आया था क्वेश्चन कि वहां पे गिवन था कि ए से बी के बीच में जो आपका डीके हो रहा है उसका डीके कांस्टेंट कितना है आपका, उसमें लैम्डा है, और बी से सी में जो हो रहा है दैट इज 10 लैम्डा. ठीक है, समझ लो. ए से बी में जो आपका डीके हो रहा है उसका डीके कांस्टेंट लैम्डा है और बी से सी में -10 लैम्डा है, सॉरी 10 लैम्डा है. आपको क्या कैलकुलेट करना है? N2T by N1T. ये क्वेश्चन था, कितना इजी था. जस्ट आपका फॉर्मूला अप्लाई करना था और लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू करना. इतना सिंपल क्वेश्चन. बट ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन के लिए. 1 by lambda 1 divided by lambda 2. और कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है? दैट NT है ना, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस, जो पहले डिस्कस किया था, N नॉट टू द पावर माइनस लैम्डा T, और एक्टिविटी दैट इज N नॉट लैम्डा टू द पावर माइनस लैम्डा T. ये फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट है. अब दो कंडीशन है, जैसे N2 इंटरमीडिएट न्यूक्लियस को लेके दो कंडीशन. एक तो आपका बोलते हैं सेकुलर इक्विलिब्रियम, जो बोलते हैं रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सेकुलर इक्विलिब्रियम. सेकुलर इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? दैट सेकुलर इक्विलिब्रियम मींस जो आपका
n1 lambda 1 equals to n2 lambda 2 equals to n3 lambda 3। तो ये कंडीशन जब अचीव होती है उसको हम बोलते हैं सेकुलर इक्विलिब्रियम। n lambda that is constant, n lambda of a nucleus, b nucleus, c nucleus सारे का n lambda जो है that will be constant। तो ये तभी अचीव होती है जब आपका lambda 2 is much much greater than lambda 1। आपको पता है lambda 1 and lambda t half के बीच में रिलेशन है। तो lambda 2 अगर पेरेंट दिस lambda 2 is much much greater, यहाँ पे lambda 2 था, यहाँ पे lambda 1 था। अगर lambda 2 is much much greater than lambda 1 तभी आपका सेकुलर इक्विलिब्रियम अचीव होंगे। और इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ व्हाट विल से दैट टी हाफ ऑफ ए से बी के बीच में जो आपका डिके हो रहा है, यानी हाफ लाइफ ऑफ parent nucleus if it is much much greater than the half life of b nucleus, then it will be called secular equilibrium। ठीक है, सेकुलर इक्विलिब्रियम में यू विल गेट दिस कंडीशन दैट विल बी पॉसिबल जब आपका lambda 2 is much much greater than lambda 1 और half life of parent nucleus should be much much greater than the half life of b daughter nucleus। एक और है, दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। दो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दूसरा क्या है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा आपका n2 by n1 that will be some constant, n3 by n2 that will be some constant and so on। constant का मतलब क्या है, that will independent on time, that will only be depends upon some decay constant lambda 1 lambda 2 and so on। so transient equilibrium means क्या है, ratio of b nuclei to that of a nuclei for any type that will be independent on time, c to b nuclei that will be independent on time। independent means what, that will be dependent upon decay constant only but कोई टाइम का फैक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जैसे आपका सेकुलर इक्विलिब्रियम कब था, lambda 2 इज मच मच ग्रेटर देन lambda 1। यहाँ पे क्या है, lambda 2 विल बी ग्रेटर देन lambda 1 और t half of parent nucleus should be greater than t half of daughter nucleus। okay, so this is I mean important thing। एक और चीज है, फिर मैं प्रॉब्लम में चला जाऊंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ही करना था बट जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे प्रॉब्लम आ सकती है वो मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आपका जो एग्जाम में आएगा आराम से कर सकते। जैसे एक और है जो रेडियो एक्टिविटी का है, अल्फा डीके का। तो अल्फा डीके कब होती है, बेसिकली जब आपका पेरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर ग्रेटर देन 150 हो, यानी पेरेंट न्यूक्लियस लार्ज साइज का हो। एट द सेम टाइम इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन 8। So if you have a parent nucleus having mass number greater than 150 and atomic number greater than 83, then only that alpha decay can happen। So you suppose let us write a alpha decay process। Suppose we have a XZ, is the parent nucleus is undergoing alpha decay and producing daughter nucleus by reducing mass number, sorry, atomic number 2 and mass number 4। and you have a alpha particle is nothing but doubly ionized helium। So this is your alpha particle, and there will be release of energy। This is known as Q value that we have discussed। G of emitted alpha particle सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ही नहीं है यहाँ पे बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted alpha particle that will be what, ratio of mass number of daughter y to that of parent nucleus into Q value। अब एक Q वैल्यू गिवन रहेगा, आपका कोई डीके प्रोसेस गिवन रहेगा, डॉटर न्यूक्लियस गिवन रहेगा, डॉटर न्यूक्लियस का मास गिवन रहेगा, पेरेंट न्यूक्लियस का मास गिवन रहेगा, Q वैल्यू भी गिवन रहेगा। आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का कितना है। सो नथिंग इज दैट, A-4 मींस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, A मींस मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू Q मींस एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस की वैल्यू विल बी डिफाइंड। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैम में भी आती है और नेट में भी आती है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
कोई रेडियोएक्टिव फेनोमेना है सपोज मान लो, तो यहाँ पे रिसेंटली आया है, सपोज मान लो यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस से इज अंडरगोइंग radioactivity converting to daughter B. At t equals to 0, you have a n naught number of A nucleus is there. There is no B nucleus. और इसमें बोला गया है कि हाफ लाइफ ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन, दैट इज 5 days. ठीक है, आफ्टर टाइम t equals to 15 days, ठीक है, दिस A nucleus become N. So you have to find N naught minus N divided by N naught. This value you have to find. ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दे, क्या गिवन है, आपका हाफ लाइफ गिवन है, रेडियोएक्टिविटी फेनोमेना का इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया गिवन है, आफ्टर सर्टेन टाइम यू हैव टू फाइंड दैट n, है ना, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड n, बट आपको क्वेश्चन में जो गिवन है n नॉट माइनस n बाई n नॉट, ये आपको फाइंड आउट करना है. अब कैसे करोगे, आपको ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट एनी टाइम दैट कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ हाफ लाइफ. तो कोई न्यूक्लियस का अगर हाफ लाइफ गिवन है और कोई आर्बिट्रेरी टाइम में कितना अनडिकेड न्यूक्लियाई है वो पूछा गया है, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि आफ्टर 15 days number of undecayed A nuclei, that will be how much, initial number of nuclei, then 1 by 2, then t कितना दिन बाद 15 days बाद डिवाइड बाय हाफ लाइफ गिवन था, that is 5. तो यहाँ से n आ जाएगा, so that will be n by 1 by, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से 5 कैंसिल होगा तो 1 by 2 की पावर क्यूब मींस n नॉट by 8. तो ये आपको मिल गया n नॉट by 8. Now you can easily find that n naught minus n by n naught. So that will be how much? N naught minus n naught by 8 divided by n naught. So this will be 7 by 8. ठीक है ना? दूसरा जैसे प्रॉब्लम है आपका, एक कोबाल्ट है, इसमें आपको बोला गया है कोबाल्ट का हाफ लाइफ गिवन है 12n2 10 the power 8. ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये रिजल्ट आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. कोबाल्ट न्यूक्लियस इज गिवन, ठीक है, और इसका हाफ लाइफ गिवन है, t half of this nucleus is given 2.2 ln2 10 the power 2 ln2 10 the power 8 second, 2 ln2 into 10 the power 8 second. This is the half life of a cobalt nucleus. Okay, and यहाँ पे क्या बोला गया है कि 10 ग्राम कोबाल्ट का एक्टिविटी कितना है. एक्टिविटी मीन्स रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिके, ठीक है ना. तो आपको पता है कि एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी बेसिकली, सो दिस इज नथिंग बट n नॉट लैम्डा. अगर आफ्टर टाइम t बोलता है फिर e पावर माइनस लैम्डा t आता है, बट इनिशियल एक्टिविटी मींस n नॉट लैम्डा, t इज 0. अब आपको पता है कि लैम्डा मींस व्हाट, 0.693 बाय t हाफ, और t हाफ तो गिवन है n नॉट मींस नंबर ऑफ कोबाल्ट न्यूक्लियस. अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, कोबाल्ट का मास नंबर गिवन है, कोबाल्ट कितना था 2760, इसका एटॉमिक नंबर 27 से 60 इसका मास नंबर है. तो आपका एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट लगाओगे, है ना, तो एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मास नंबर की कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राम है कोई न्यूक्लियस का, दैट विल कंटेन हाउ मेनी न्यूक्लियस, दैट विल कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ न्यूक्लियस. तो 1 ग्राम कोबाल्ट में कितना न्यूक्लियस है, कोबाल्ट न्यूक्लियस है Na/60, और कितना ग्राम कोबाल्ट था, 10 ग्राम कोबाल्ट था, तो इसका एक्टिविटी कितना हो जाएगा 10/60 into Na. So this will be 1/6 into Na means 6.023 into 10 to the power 23.
Okay, so this is n naught you have obtained, just you substitute. So 0.693, okay, 0.693, then n naught is 1 by 6 into 6.023 10 the power 23, and here you have, और क्या रहेगा था, हाँ टी हाफ कितना है 2 ln2 into 10 the power 8, हो गया, ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो एक्टिविटी की वजह से भी क्वेश्चन आता है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ पे एवोगाड्रो का कॉन्सेप्ट है 1 मिलीग्राम सैंपल, सो जहाँ पे आपको एन कैलकुलेट करना है, तो जस्ट एवोगाड्रो का जो कॉन्सेप्ट है, मास नंबर की कॉरस्पॉन्डिंग ग्राम विल कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो उसके बेस पे आपको सिंपल जो आपको मैथमेटिक्स है वो यूज करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एन नॉट को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब आराम से कर सकते हो इसको। जैसे एक और क्वेश्चन है, ये आपका एक ह्यूमन बॉडी है जहाँ पे ये तो मैं क्लास में भी कराता हूँ। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, वहाँ पे पोटेशियम है, कितना परसेंट है, आई थिंक आप लोगों ने वो किया हो क्लास में भी, ये पोटेशियम 40 है ना। और ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट है 3.24 इंटू 10 पावर -5% पोटेशियम है, ठीक है। और इसमें क्या गिवन है कि मास ऑफ ह्यूमन बॉडी गिवन है आपका 70 किलोग्राम, ठीक है। मास ऑफ ह्यूमन बॉडी गिवन है 70 किलोग्राम, ठीक है। और क्या गिवन है, half life of potassium is given, that is 3.942 into 10 the power 16 second, 3.942 into 10 the power 16 second, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है एक्टिविटी ऑफ रोबोट, कर लोगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पोटेशियम ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट है 3.24 -5%, ह्यूमन बॉडी का मास 70 किलोग्राम है, ठीक है। और half life of potassium is given, that is 3.942 into 10 power 16, so you have to calculate the activity of potassium 40 inside human body। बताओ क्या होगी, बताओ, tell me। So you know activity is what, a naught equals to n naught lambda, lambda means 0.693 by t half was given, and then you have a n naught, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा n naught की वैल्यू कितना है, n naught की वैल्यू कितना है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पता है कि 70 किलोग्राम है, राइट, तो 70 किलोग्राम में कितना ग्राम पोटेशियम है वो देखना पड़ेगा। तो 70 किलोग्राम सॉरी 3.24 into 10 to the power -5% ऑफ 70 किलो, यानी आपका क्या आ जाएगा, 70 किलोग्राम में 70 into 10 to the power 3 ग्राम, देन 3.24 into 10 to the power -5% है, तो इतना ग्राम आपका बेसिकली क्या है, पोटेशियम है इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लोगे, है ना। 70 किलोग्राम का इतना A% मतलब कितना ग्राम है, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बॉडी, सो वी हैव ऑब्टेन्ड दैट अमाउंट ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सो यू नो के 40 ग्राम पोटेशियम विल कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, Na, so this will contain, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये कितना ग्राम है, दिस विल कंटेन हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियाई ऑफ पोटेशियम, दिस विल बी n नॉट। तो यहाँ से इस ग्राम से आपका कितना n नॉट, आई मीन कितना नंबर ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट है वो आपको, अब वो आप निकाल सकते हो। सो n नॉट आ गया, और टी हाफ गिवन था, तो ये आपको फैक्टर मिल जाएगा, यहाँ से n नॉट मिल जाएगा, रख दो आराम से। जैसे एक और है कि कोई एक्टिविटी ऑफ सैंपल, अच्छा
क्या बोल रहा है कि कोई एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, ठीक है, और 30 डेज के बाद उसका एक्टिविटी जो है दैट इज आई मीन दैट इज 75% ऑफ इनिशियल एक्टिविटी. You have a radioactive sample. Okay, so after 30 days, the activity reduces to 75% of initial value. So how do you have to find? You have to find the half-life of this sample. Okay, you have to find the half-life of this sample. So initial activity is A naught. After time t equals to 30 days, this 30 days, the activity becomes 75% of A naught means what? 3 by 4 times A naught. So what you have to find? You have to find the half-life of the sample. You know, the activity of your sample after time t, this is A naught e to the power minus lambda t. तो यहाँ से अगर देखोगे, so A naught will be what? AT e to the power lambda t. It means A naught by A, this will be e to the power lambda t. So यहाँ से lambda t जो आ जाएगा, that is ln A naught by A. ठीक है? So lambda will be how much? Lambda will be 1 by t ln A naught by A. And 1 by t means time, and time 30 days. ठीक है ना? तो 30 days means इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो. तो 30 into 24, right? So days से आपका किस में आ गया? ये आवर में आ गया. आवर्स को सेकंड में मीन्स 360 से आई मीन 3600 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, so this is you have obtained this lambda in terms of second inverse. Now of course this ln will contain a naught. t at कितना है? This is 3 by 4 times a naught. So this is basically actually 4 by 3 ln. So now we have obtained that lambda in terms of second inverse. We have obtained lambda. Now we can easily calculate that t half, because t half is nothing but 0.693 by lambda. ठीक है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इनिशियली ए नॉट था, आफ्टर 30 डेज और एक्टिविटी कितना था? 75% ऑफ इनिशियल एक्टिविटी. सो यू हैव टू फाइंड दैट हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल. ठीक है? तो दिस इज अबाउट योर न्यूक्लियर फिजिक्स. जो भी आपका आज का क्लास का डिस्कशन हुआ है, उसको अगर आपको समझ में आया है तो आराम से क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर दो. ठीक है? फुल स्टॉप हियर. एटॉमिक फिजिक्स थोड़ा सा है, बट आई थिंक आई कैन नॉट डू. I'm feeling tired actually. Okay then. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.